And also, again, based on that knowledge, I do also deliver some training sessions, which is from Arbor company. Okay, Arbor Academy is the one academy who has been, let's say, providing you this all the details, providing all the information. Okay, let me first, yeah, recording is started. No worry about it. Sorry for the cough. It's actually I'm having a bit cold, so that's why. Ignore that. So again, let us have the PPT in front of you to you'll be understanding it in much more broad aspect way. So over here, I think everyone is on board, isn't it? There is no one who is left now. So let me take you to our PPT. Introduction will be a PDF. Just a second. Yeah, here it is. It's a PDF. Okay. One request to everyone, make sure your mics are off because it should not, let's say, disturb others, isn't it? Yeah, if you have any queries, you can put on. There will not be any problem. But till the point you don't have any query, please make sure you keep that mic off. So, है ना, तो सबको समझ में भी आएगा और सबको जो हमारा मैसेज देना है, that would be easier for everyone else to grab that without any disturbance. So over here, okay, I think people are not responding to my request. Let me see who is this. Avinash, could you please mute your mic? Okay. Yeah. Thank you. Thank you for the response. Okay. Over here, as we are discussing, as we are getting along with each other, uh, this is our Arbor Academy. This Arbor Academy is specifically, or let's say, prominent in IT training institutes and placement centers. Their main role is this two major parts, where they teach, where they give the information, where they share the knowledge also, and also provide the placement for the particular role or particular, let's say, session or particular topic that you have worked on. Okay, they do provide the same information and same placement details also. Over here, we have one good opportunity that you need to pay after, okay, after the placement. Yes, obviously fees which is required, the session fees, the maintenance fees or the other fees which will be provided or which will be informed by our POC. POC over here, I'll be using this word POC. POC is nothing but point of contact. Okay, point of contact means person who is been engaged with you, person who has been let's say convinced you or who has given you a proper information regarding the topic, regarding the session, regarding all the informations, looking after you beside the session. That means other than technical session, other than technical concerns, technical over here, technical concerns will be pleased by me, Deepak Bhatlavande. Okay, I'll be concerning with this technical concerns regarding Power BI. Any query, any questions regarding technical issues with Power BI will be handled by me. Other than those regarding placement, regarding your resume, regarding your if there's any let's say gap in your career like that, so that will be handled by our team. Okay, our team. Now again, let me introduce myself over here, Deepak Bhatlavande, who is a data scientist working on different domains, not only a particular health, not only a particular production service. I have different knowledge of different domains. So over here we are specifically talking on this topic, Power BI. Power BI over here is one of the largest, or let's say one of the top ranking. Obviously, it's not only the top five, but it is on that five, it's the topmost. So this is one of a tool. This is one of a let's say data analytical tool specifically, which is used to analysis the data. Okay, which is used to analyze the data, and based on that analysis, we can make our decisions. Okay, we means who we are concerned over here as a business owner, the one who is going to take decisions, the one who is going to let's say confirm whether the product should be sold out or not, whether the product should be stopped or not, whether the product should be the production of that product should be increased or not. That type of higher hierarchical decisions can be put on. Okay, like that. Okay, now
What is Arbor? Arbor Academy is an online IT course provider based in Pune, offering a wide range of courses, okay, designed to equip individuals with skills needed to thrive in your today's technologies driven world. Obviously, this is what they have the motto. Okay, this is what we have as a motto, that we emphasize on these details. What are the key features when you're joining, when you will be joining? Okay, one more thing. Is it okay to speak with English, or is it okay to go with Hindi with it? Because I would not say specifically for Marathi, because Marathi will be a bit localized language, which would be, I think, would be difficult for some of the people over here to understand. But anyhow, as a broader aspect, English and Hindi would be, I think, okay to everyone. So is it okay with Hindi or English? What do you say? Yes. Both. Both is fine. Okay with both English. okay. यस सर हिंदी चलो इंग्लिश बहुत दोनों ठीक आहे मराठी. चलेगा. तो मराठी में बोलू शकतो, ऐसे कुछ नाही, आपण मराठीमध्ये बोलू शकतो. प्रॉब्लेम काय होता माहिती आहे का, पण मराठी म्हणलं की फक्त त्यांनाच ज्यांना मराठी येतं. सो तेवढं थोडं Sorry, I cannot understand Marathi. या दैट्स व्हाई आई सेड कि स्पेसिफिक मराठी चलेगा थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश कर देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए. ओके It is fine. ओके थैंक यू फॉर द कंसेंट. नाउ ओवर हियर की फीचर्स जो आप बार बार से एक बार कनेक्ट होते हो, या बार बार में आप चीजें, ये जो आप क्लासेस करोगे, जो आप यहाँ से सीखोगे चीजों के बारे में, तो उससे हमारा एडवांटेज क्या है, व्हाई शुड वी गेट ओवर हियर. बेसिकली एक तो एडवांटेजेस जो हमने पॉइंट आउट है, कुछ किया है, बाकी बहुत सारे और भी चीजें, बट उसमें से जो मेजर चीज है, जैसे कि एक तो है कि भाई ये फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड है. ओके, कभी आप लर्न करो, कभी आप इसे सीखो, कभी भी इसे आप रिकॉर्ड, क्योंकि क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं आपके पास. जो भी लाइव वीडियो अवेलेबल होता है, जहाँ पे आप एक्सेस करते हो या फिर जो अटेंड करते हो, वही वीडियो का रिकॉर्डिंग होता है. ऐसे नहीं होता है कि हाँ भाई आपने कुछ अटेंड करते समय तो कुछ और ही था, बाद में हमने रिकॉर्डेड वीडियो देखा तो पता नहीं किसका वीडियो आपको दे दिया. ऐसा नहीं होता है. जो सेशन आपने रिकॉर्ड किया है, जिस सेशन में आप बैठे थे, उसी का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि यस, जो आप डिस्कशन कर रहे होंगे या फिर जो आप बात कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो वही चीजें वहां पे आपको दिखेंगी. ओके, एंड अगेन रिकॉर्डेड वीडियोस में इतना इफेक्टिव, देखो भाई दुनिया पूरी ऑनलाइन हो चुकी है. जब हम वर्क फ्रॉम होम ऐसे बोलते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम बैठ के हम क्यों नहीं सीख सकते लर्निंग, इजंट इट? फॉर दैट आप कहीं भी बैठो, आप वहां से ही सीख सकते हो फ्रॉम एनी डिवाइस. मेक श्योर, एनी डिवाइस मतलब क्या, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मॉनिटर पीसी हो सकता है. सो फ्रॉम एनी डिवाइस वेयर यू हैव स्क्रीन. नाउ अगेन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्राई कीजिएगा, बिकॉज वी आर लेट्स से लर्निंग सम टेक्निकल टूल्स, इजंट इट, जो हम यूज करेंगे, जो हम, जिसमें हमें प्रैक्टिस करना होगा. ये सिर्फ ऐसे नहीं कि ये बस हमने इंग्लिश का ग्रामर लिया, इंग्लिश के ग्रामर में हाँ हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव वर्ब, उसके सेंटेंसेस बनाते समय एट्रीब्यूट्स है या भी चीज कहाँ कहाँ पे प्लेस करते हैं, फिर बस बोलना है. ऐसा नहीं है. उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस हमें करना है. हमें क्या करना है, उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है. सो वी नीड टू वर्क दैट डिवाइस, वी नीड टू वर्क दैट टूल ऑन पर्टिकुलर डिवाइस. तो डिवाइस की बात जब आती है तो हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो भी हम करेंगे, स्टार्टिंग के एक दो सेशन जो कर रहे हैं वो ठीक है, थ्योरेटिकल करो, आई वुड नॉट माइंड विद दैट. बट मेक श्योर कि जब हम 3 दिन के बाद में, क्योंकि 3 दिन का आपको बताया होगा कि डेमो सेशन है, तो 3 दिन का डेमो सेशन के बाद में चौथे दिन जब आओगे, तो मेक श्योर कि आप आपके पास में लैपटॉप जरूर रखें. लैपटॉप स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि हम उसमें पावर बीआई का टूल है वो इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद में हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. तो ये सब करते समय साथ में करोगे तो क्या होगा, आपके लिए बेटर है, बेनिफिशियल है. ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आप वीडियो देख के बाद में करोगे, तो फिर ठीक है, वो तो आप फिर यूट्यूब से भी कर ही सकते थे ना, इजंट इट? और इवन ठीक है, वैसे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि लैपटॉप हो, सिर्फ मोबाइल में ना देखें. ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपको करने को अगर मैं बोलूंगा, तो यू शुड बी रेडी विद दैट. सो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वर्क ऑन दिस लाइव प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स अभी रियल लाइफ में, जो अभी ऑन द लेट्स से हॉट स्पॉट के बेसिस में जो भी वर्क चल रहा है, जो मार्केट में जिसका अभी रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं. ऐसे नहीं कि भाई कहीं तो भी एक पुराना सामने लेके आया था डेटा, उसमें से हम वर्कआउट कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट. वी डू वर्क ऑन लाइव. लाइव बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा वर्कआउट ऑलरेडी चल रहा है, जो ट्रेंड में है, जो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. Then guided over here education, mock interviews and trainings, these are all given by our, एक गाइडेंस देने के लिए जो रिलेटेड है वो भी मैं ही करूँ, आपको हेल्प करके दे दूंगा. हमारी टीम है,
विल प्रोवाइड विद दैट डिटेल्स। फिर मॉक इंटरव्यूज भी दी जाते हैं जब अगर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, साइड बाय साइड मॉक इंटरव्यूज चालू हो जाते हैं, है ना। तो ये साइड बाय साइड हमारा वर्क चालू होता है जिसमें कि आपको बिल्टअप पता चलता है कि अच्छा मेरा जो मैंने अभी आर्बर के थ्रू या किसी से भी हमने जो पावर बेस सीखा है वो एक्चुअल में कहाँ तक मैंने सीखा है, इजंट इट। उसे रियल वर्ल्ड में अगर मुझे कुछ क्वेश्चन अराइज या फिर कुछ सीनरीज या फिर कुछ सिनेरियोज मेरे सामने पुट फॉर्थ होते हैं तो क्या मैं उसे सॉल्व कर पाता हूँ, एम आई एबल टू रिजॉल्व दैट, बिकॉज दैट इज अवर अल्टीमेट गोल, इजंट इट। देन अगेन क्यूए, क्वेश्चन एंड आंसर्स, डिस्कशन फोरम्स वगैरह सब अवेलेबल है, हम प्रोवाइड करते हैं आपको, क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं, शेयर भी करते हैं। सेशन के अंदर ही लेक्चर में जब चल रहा होता है तभी मैं आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करके देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पावर बीआई का सेशन चल रहा है, मैं आपको बोलूंगा देखो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पावर बीआई कंपोनेंट्स कौन से हैं उसमें पूछा जाता है, तो इंसर्ट ही आपको ध्यान रखने क्या चाहिए, दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी लिखता है। ऐसे क्यूए आंसर क्वेश्चन फोरम चलता रहता है। देन बाई वीकली मॉक इंटरव्यूज, बाई वीकली मतलब क्या है, हर 2 हफ्ते के बाद में आपका मॉक इंटरव्यू होता, प्रोजेक्ट होने के बाद में जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, बाई वीकली भी मतलब दूरी हो गया पकड़ लो, बट हर 2 या 1 हफ्ते में आपका मॉक इंटरव्यू, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाओगे साइड में एक होने के बाद में साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है और आपके मॉक इंटरव्यू साथ में स्टार्ट कर दिए जाते हैं, ताकि जो पहले प्रोजेक्ट में गलतियां हुई हैं वो आप दूसरे प्रोजेक्ट में करें ना, आप उसमें से बेटर आउटपुट निकाल सके, लाइक दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन दैट। देन अनमैच अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड प्लेसमेंट ड्राइव्स होंगे आपके, ये आपको अगेन हमारे जो पीओसी आपके कॉन्टैक्ट पर्सन है उन्होंने सब डिटेल्स बताया होगा। देन मास्टरिंग एचआर राउंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मतलब क्या है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होता है आपको पूरा दिया जाता है, यू कैन एनी टाइम वॉच इट आउट। अच्छा वॉच इट आउट मतलब क्या है, उसको डाउनलोड करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, ध्यान रखेगा, आपको आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, कर लीजिए। वाई, इसका रीजन है पहले दिया गया था लेकिन बाद में क्या होगा कि भाई वीडियो मतलब जो डाउनलोड करने की जगह डिलीट हो गए, उसको कुछ और तरीके से यूज किया, सो वी हैव रिमूव दैट फिजिबिलिटी फॉर डाउनलोडिंग। हाँ आप आपकी स्क्रीन में ऑन करो, रिकॉर्ड करो, उसे सेव करो, आप यूज करो एनी हाउ, लाइक दैट वुड बी डन। रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, आप कहीं से भी कर सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, फॉर्मेट ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि बस पीसी में चलेगा, सो अवेलेबिलिटी है। देन पर्सनलाइज अटेंशन, स्मॉल ट्रेनिंग बैचेस, पर्सनलाइज अटेंशन और स्मॉल ट्रेनिंग बैचेस का मीनिंग ये है कि जैसे प्रोजेक्ट पकड़ लो, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हमारे बैच में अभी एग्जांपल पकड़ लो कि 30 लोग हैं, तो 30 लोग का कैसे हम प्रोजेक्ट पे और कैसे ट्रेनिंग बैचेस दिएंगे, तो उसमें दिया क्या जाता है कि पहले हम 30 लोगों को डिवाइड कर देंगे 5 के बैचेस में। वंस इट इज बिन डिवाइडेड, 6 ग्रुप में हो गए, हर एक ग्रुप का आपको एक एक सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट दिया जाता है। और ग्रुप में प्रोजेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रुप में 3 लोग करेंगे और 3 लोग बाकी तो आराम से, या फिर 2 लोग आराम से बैठे रहेंगे, वो 3 लोग कर रहे हैं ना, या फिर 2 लोग कर रहे हैं 3 लोग आराम से, ऐसे नहीं होगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर ओन प्रोजेक्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग विद इन योर ग्रुप, that project or the resolution of that project should not be matched, should not be, let's say let's say copy paste नहीं होना चाहिए आपके पांचों के बीच में भी, it should be different, anyhow different। सो शेयर करते समय भी क्या शेयर करना चाहिए, लॉजिक शेयर करो, आपके थॉट्स शेयर करो, आपका नॉलेज शेयर करो, मगर आपके रिपोर्ट्स शेयर मत करो, डेटाबेस आपका जो डैशबोर्ड है वो मत शेयर करो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ग्रुप में भी ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, आपने भी वही बनाया, दूसरे ने भी वही बनाया, किसको प्रायोरिटी दे, सो दैट वुड बी ए क्वेश्चन। क्योंकि आगे जाके जब बात आती है मनी की, जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलने का अपॉर्चुनिटी आएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा वहां पे फ्रेंड जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। ओके, सो मेक श्योर you have that particular knowledge about yourself. Then ongoing support for job support assistance, ongoing support for job assistance मतलब क्या है, जो भी आपके काम करते करते आप जो सीख रहे हैं उसके बाद में आपको जो भी एक जॉब आया है, उस जॉब के साथ मेरे को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसका आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की डिटेल चाहिए, तो ये भी आपको हम सपोर्ट करके देते हैं। सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलरली आर्बर इज प्रोवाइडिंग टू यू। आप आर्बर में ज्वाइन करेंगे, आर्बर आपको इतने सारी चीजें फैसिलिटेट करके देगा, इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत सारी चीजें ज्यादा करके देते हैं, बट अगेन दिस आर सम ऑफ द हायर पॉइंट्स दैट आई नीड टू मेंशन ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट इज पावर बीआई? अगेन पावर बीआई का क्वेश्चन अगर होगा, पावर बीआई क्यों, एक तो बेसिकली है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, और वही क्यों हम चीज सीख रहे हैं, इजंट इट। नाउ पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ये पावर बीआई। पावर बीआई का मीनिंग ये नहीं है कि भाई पावर का मीनिंग बहुत पावरफुल लाइक दैट, इसका कंसर्न में वहां पे नहीं है, इट्स हैज अ डिफरेंट मीनिंग, देन वी विल टॉक इन आवर रेगुलर सेशन में जब आएंगे तब। बट बीआई ओवर हियर स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। सो पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या है, एक रोल है, और उस रोल को पावर करने के लिए हमने पावर बीआई यूज किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड किया गया है।
दिस इज एन इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि मुझे अगर टॉप 5 है ना, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपकी सिटी में टॉप 5 सेलर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, किसी भी प्रोडक्ट का पकड़ो, टॉप 5 सेलर्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है मुझे, तो हजारों सेलर्स में से लिस्ट आएंगे, उसमें से टॉप 5 मुझे चाहिए। तो टॉप 5 को जैसे आप बोलोगे टॉप 5, तो डेटा अपने आप खुद को मैनेज करेगा, इसे कहते हैं इंटरैक्टिव। What I want, my visualization is working with respect to that. My visualization is presenting me in that way. उसे कहते हैं इंटरैक्टिव। ओके, तो इस तरह से प्रोवाइड करके देता है। कैसे देता है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्लाइसर्स होता है, फिल्टरिंग करना होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड आपको विजुअलाइजेशन को, तो उसको भी कर सकते हो। देन ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, वी कैन गो ओवर देयर लाइक दैट। कैटेगराइजेशन है जिसको हम कहते हैं, फिर उसमें हम कहते हैं कि ह्यू है, देन डिटेल्स होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको एक चीज आपको हाईलाइट करने में बहुत मदद करती है, एक पर्टिकुलर। सो वी विल सी दैट आल्सो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इंटेलिजेंस? पावर बीआई तो ठीक है, समझ गया, ये तो टूल है जिसमें हम वर्कआउट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। बीआई क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ रोल। ओके, इट्स अ रोल, इट्स अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू हेल्प बिजनेस मेक बेटर डिसीजन। तो अच्छा डिसीजन बनाने के लिए बीआई एक रोल है, एक जो प्रोसेस फॉलो करता है कि किस तरह से हमें किसी भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को, किसी भी एक प्रॉब्लम को कैसे हमें ऑब्जेक्टिव के थ्रू ना एक एक पॉइंट आउट करके कैसे चीजों को हमें एक एक करके उसे वर्कआउट करना होता है। तो दैट बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेटा, एंड while understanding, Power BI helps us to get more information within the data. Once the information is taken out from Power BI, then BI what it does, it understands the report. देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने टेक्स्ट तो देखा ही होगा। टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जो हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो, मैगजीन में वगैरह आपने कहीं पेज पे, कवर पेज पे देखा होगा, ऐसे लिखा होता है कभी कभी। लेट्स से पावर बीआई में ऐसे बड़ा लिखता हूँ, पावर बीआई नहीं, इस लेट्स से मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से एप्पल, है ना, एप्पल। ये मैंने बड़े अक्षर से लिखा है। फिर छोटे अक्षर से बॉल लिखता हूँ, लाइक दिस। और फिर कैट लिखता हूँ, और फिर बाद में यहाँ पे छोटा एकदम डॉग लिखता हूँ एकदम। और फिर एप्पल के कुछ करीबी साइज का यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ इस तरह से। फिश थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, लाइक दिस। ना, ये जो आपके सामने ग्राफ है, या फिर ये जो हमने डिटेल्स लिखे हैं ना, ये चीजें आपको देखो हमेशा आपके कहीं ना कहीं पेपर में, कहीं मैगजीन में आपने ऊपर देखा होगा कि वर्ड को ना एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होता है, बड़े छोटे अक्षरों में और अलग अलग कलर्स में दिखाया गया होता है। ये भी हाँ एक, सर, स्क्रीन इज नॉट हाँ स्क्रीन सर, बोलिए स्क्रीन इज नॉट शोइंग। गाइस, इज माय स्क्रीन नॉट विजिबल? No, no, it's Visible. visible. Yes, sir. Sir, visible, visible. It's visible. ओके, जिन जिन को थोड़ा सा भी मतलब, ओके ओके, थैंक यू कंफर्म। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो 2 मिनट के लिए मैं वेट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप फिर से ज्वाइन करें। ओके, आई वेट फॉर दैट। आई थिंक आ गए हैं। अब यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड क्लाउड। वर्ड, शब्दों का क्लाउड, वर्ड क्लाउड। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे, हम उसको एक साथ रखेंगे, और उसमें से किसी चीज को मुझे हाईलाइट करना है, किसी चीज को एम्फोसाइज करना है, किसी चीज पे मुझे और इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना है। तो ऐसे हाईलाइट करते समय मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हाईलाइट करेंगे, हमारे रेज्यूमे में हम हाईलाइट क्या करते हैं? हाँ भाई, मेरा रोल क्या किया था मैंने, बड़े अक्षर में लिख देंगे, है ना, बोल्ड करके, ऐसे बार बार उस पर कैसे ऐसे बोल्ड कर देंगे। तो वैसी चीज यहाँ पे कुछ क्या करते हैं वहां पे इस ग्राफ में, हम उस वर्ड को क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल साइज के बेसिस में हम उसे बड़ा करते हैं, ताकि बाकी चीजों छोटे लगेंगे, और जब भी हम इसे देखेंगे एक बार, तो एप्पल, फिश और ऐसे जो बड़े वर्ड्स है, जो साइज है बड़े, वो हमें हाईलाइट करके दिखेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन वहां पे जाएगा। इसी तरह के चीजों को, इसी तरह के विजुअलाइजेशन को, अगेन मुझे पता है आप लोगों को बार चार्ट, आपको पाई चार्ट सब पता है, बट दिस माइट बी वन ऑफ द चार्ट दैट यू माइट हैव
let's say heard for the first time or might have let's say seen over here, which is not much more frequent. Okay, बहुत rarely, बहुत कम लोगों की जगह पे यूज होता है. तो इस तरह के भी विजुअल्स होते हैं. वो भले ही बार चार्ट नहीं होंगे, भले ही पाई चार्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे. तो इस तरह से involving collecting, analyzing and present the data in the way of how we can understand, extract, how we can get information from that particular data. Data over here means जो भी आपने आपको डेटा इन द सेंस ऑफ टैबलर फॉर्मेट में है, जो भी आपने कहीं सेल्स का डेटा होगा, कहीं मार्केटिंग का डेटा होगा, कहीं हेल्थ केयर का डेटा होगा, कहीं से भी डेटा लिया होगा, उस डेटा में से एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन को, तो पावर भी आपको हेल्प करता है. नाउ सिलेबस वाइज आप देखोगे तो हम क्या क्या करने वाले हैं, हम इसमें से क्या ही चीज हम पढ़ेंगे और क्या क्या हमें बेसिकली इसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा पावर बीआई की सेशन से. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पावर बीआई है क्या इन थ्योरेटिकल पार्ट. आप बोलोगे अच्छा ये तो यही पे हमें समझ में आएगा पावर बीआई है क्या. आई नो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ चुका है पावर बीआई का, बट पावर बीआई सिर्फ उतना ही नहीं है ना. पावर बीआई सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस में ही नहीं होता है. पावर बीआई के अंदर में बहुत सारे जैसे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है ना. आपको कभी भी किसी फेस्टिवल में गए होंगे तो उस दिन, जिस दिन आप जाते हो उस दिन बहुत अच्छा लग रहा होता है. फेस्टिवल के दिन में आपको एक जगह होटल थोड़ा सा इधर उधर गाड़ा होता है, उस गाड़ी में आप खाते हो, पीते हो, ऐश करते हो, एंजॉय करते हो, फ्रेंड्स के साथ में होते हो, लाइटिंग बहुत अच्छी से होती है, सब जगह मतलब एक अच्छा सा माहौल होता है. उस माहौल के पीछे उसको स्टेज करने के लिए लोगों ने जो मेहनत की होती है, ओके, वो बैकग्राउंड में दिखता नहीं है. सो वैसे ही पावर भी जो आपको दिखा रहा है, जो आपको फोकस करके दिखा रहा है, जो आपको समझा रहा है, ये चीजें बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, इसमें हमें करना तो नहीं है. ओके, कोई भी आपको बोलेगा नहीं कि मुझे करके दिखाओ, बट एटलीस्ट पता तो करो कैसा वर्कआउट हो रहा है. कल जाके अगर आपको उसकी सीक्वेंस चेंज करना रहा, कल जाके आपको उसमें से किसी ने पूछा कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना रहा तो कर पाऊंगा क्या, तो यस और नो को जस्टिफाई करना भी तो आपको पता होना चाहिए, isn't it? So theoretical पार्ट में सीखते हैं. देन ओवरऑल आर्किटेक्चर, इंस्टॉलेशन एंड प्लान्स, ओके, ओवरव्यू ऑफ, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट्स में आता है. फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इंपोर्टिंग डेटा आपके टूल में कैसे इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, उसे ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है. ओके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैसे किए थे, ग्रुप कैसे किया जाता है, मर्ज कैसे किया जाता है, ऐसे सब चीजें हम सीखेंगे. फिर उसी चीजों को, उन्हीं चीजों को जो हमने किया है, जो हमने सेपरेट किया है या कोई कॉन्कैट किया है, उन चीजों को सिर्फ देखने से नहीं, कि टैबलेट फॉर्मेट में नहीं, हमें विजुअलाइजेशन, चार्ट्स के थ्रू, पिक्चर के थ्रू कैसे हमें उसमें इंटरप्रेट करना है, वो भी हम बताएंगे. Then introduction to DAX. DAX over here is nothing but, when I say DAX, DAX means data analytical expression. यहाँ पे ई को उन्होंने साइलेंट कर दिया है, एक्स पे ज्यादा उन्होंने मतलब थोड़ा फोकस किया, तो डैक्स हो गया उसकी वजह से. सो डैक्स एक्सप्रेशन, डैक्स सॉरी सर टू एक्सप्रेशन, इंटरप्ट. हाँ बोलिए बोलिए. सॉरी सर टू इंटरप्ट. सर ये जो डेटा एनालिटिक्स आपने बताया एक्सप्रेशंस, सो सर इट्स इन्वॉल्व कोडिंग और समथिंग लाइक दैट. नहीं नहीं नहीं, ये देखो एक्सेल, एक्सेल अच्छा बहुत लोगों को एक्सेल पता होगा, आई होप, है ना, यूज यस भी सर. किया होगा, isn't it? यस सर. Yes, sir. ओके, तो एक्सेल में जैसे ना हम यूज करते फंक्शन सम, एवरेज, यस. तो डैक्स मतलब क्या है, ऐसे कुछ फंक्शंस है जो प्री डिफाइंड है आपके पावर बीआई में, और हम क्या करते हैं, डैक्स उसे इन्हीं फंक्शन को, जैसे हम एक्सेल में जाके बोलते हैं तो एक्सेल में उसे हम फंक्शंस के स्वरूप में कहते हैं, तो डैक्स में उसे, इसे हम पावर बीआई में डैक्स के स्वरूप में कहते हैं. ओके, तो दोज डैक्स फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. डेट में, डेट के फॉर्मेट से, जैसे मेरा फॉर्मेट है, आज का डे क्या है, आज का डेट क्या है भाई, बताओ थोड़ा सा. 11 दिसंबर, 11 दिसंबर. 11 दिसंबर 2024, isn't it? मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट से मुझे क्या करना है, मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है. अब मंथ एक्सट्रैक्ट करना है मतलब क्या है, देखो आप लॉजिक समझो यहाँ पे. 11 देखोगे तो 11 भी मंथ हो सकता है, 12 भी मंथ हो सकता है. ये पावर बीआई को कैसे पता चला भाई, अगर किसी ने फॉर्मेट ऐसा लिखा होगा कि भाई डी और वाई, तो ऐसे में तो मंथ पहले आना चाहिए ना. और वही चीज अगर किसी ने ऐसे लिख दिया कि भाई डी वाई, तो पावर बीआई कैसे समझता है ये, बिकॉज ऑफ दिस इनपुट, जो ये फॉर्मेट है, अगर ये आपका फॉर्मेट सही है तो डैक्स फॉर्मेट लगाइए, बीच में से आपको जो निकालना है निकालिए, मंथ निकालिए, ईयर निकालिए, डे निकालिए, जो निकालना है निकालिए. मतलब चीजों को फास्ट एक्सट्रैक्शंस करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ये सब मीन्स लाइक एक्सेल, जैसे हम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं और मंथ या ईयर निकालते हैं वहां से। हाँ, जैसे जहाँ देखो एक्चुअली क्या है, मैं एक्सेल का क्यों आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जो लॉजिक है, जो मेथडोलॉजी है, मैं नहीं कहूंगा कि हर एक फंक्शन सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि बट जो लॉजिक है उसके बिहाइंड का फंक्शन का कैसा वर्कआउट होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर देना होता है, तो आउटपुट आता है, सेम हो वो ही है। ओके, क्लियर है? यस सर, क्लियर सर, थैंक यू। ओके, नाउ अच्छा, डैक्स बहुत अच्छा, एक बहुत मतलब यूजफुल चीजें हैं, तो ये हमें हमें बहुत अच्छे से यूज करना है, क्योंकि डैक्स जरूर पूछा जाता है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, तो ये जरूर हम देखेंगे। देन चार्ट विजुअल में पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ट्री चार्ट, मैप, ये कॉम्बिनेशन चार्ट, ऐसे अलग अलग चार्ट जो क्या होते हैं, कैसे करते हैं, उसे यूज क्या करना है, रीड कैसे करना है, इनपुट क्या होता है, इनपुट करने पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन कैसे करना है, ऑल दोज हम सब चीजें भी उससे एक्सप्लोर करेंगे। देन इंटीग्रेशन एंड एनालिटिक्स, इंटीग्रेशन एंड एनालिटिक्स में स्पेसिफिकली देखोगे आप कि हम पावर बीआई, सिर्फ पावर बीआई नहीं सीखेंगे, हम पावर बीआई पाइथन को भी कनेक्ट करेंगे पावर बीआई के थ्रू। आर, अगेन आर जरूरी नहीं है, पावर बीआई पाइथन किसी भी एक से जुड़ोगे तो भी हो जाएगा। तो आर से, आर मतलब पाइथन मतलब क्या है, हमारा एक लैंग्वेज है जो कि प्योरली डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के लिए बनाया गया है। जैसे जावा है, जैसे सी प्लस प्लस, वैसे पाइथन भी है। तो पाइथन अगेन सिर्फ उनके लिए नहीं है, लेकिन एज एन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में देखोगे तो पाइथन एक मेजर रोल अदा करता है, तो हम उससे भी कनेक्ट करेंगे। कुछ बेसिक, ज्यादा नहीं, पाइथन हम ज्यादा नहीं सीखेंगे, मतलब ज्यादा आपको दूंगा भी नहीं, क्योंकि आपको उसमें इतना कंसर्न नहीं है। बट यस, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में कोई आपको पूछता है कि आप पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो, हाँ सर मैं उतना कर सकता हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे, एटलीस्ट मैं डेटा लेके आ सकता हूँ पाइथन के थ्रू, वेरी गुड, ये हम करके देखेंगे। अभी इंटीग्रेशन में मैंने माई सीक्वल नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, कोई डेटाबेस नहीं सीखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं सीखेंगे, ये भी हम सीखेंगे। तो ऐसे नहीं कि बस लिखा है उतना ही, उस लिखा है उससे भी ज्यादा करेंगे, बट यस वो भी करेंगे। देन डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे कैसे उसको हम डैशबोर्ड, अच्छा डैशबोर्ड होता क्या है, रिपोर्ट होता क्या है, टाइल क्या होता है, पेन क्या होते हैं, विजुअलाइजेशन, लेट्स से विजुअलाइजेशन का जो पेन होता है, या फिर जो उसका एक पर्टिकुलर टाइल होता है वो क्या होता है, हम ऐसे बहुत सारी चीजें और एड इन सीखेंगे। देन ऑब्वियसली क्यू एंड ए करके एक आपका पावर बीआई में एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एनएलपी, ओके, जो यूज करता है पावर बीआई एआई के बेस में, तो वो क्या है, वो कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी हम जरूर सीखेंगे। So these are some of things that I have listed out, which is not enough, but yeah, these are something that you should know कि हम क्या क्या करने वाले हैं in small and in a brief manner. नाउ अभी हमारा कंसर्न है सर, पावर बीआई क्यों, हम टैबली क्यों नहीं सीख रहे, हम ओरेकल क्यों नहीं सीख रहे, हम सैप क्यों नहीं सीख रहे, हम आईबीएम का वाटसन क्यों नहीं सीख रहे हैं, हम क्लिक क्यों नहीं सीख रहे, जोहो करके वो क्यों नहीं सीख रहे, बेसिकली हम बाकी क्यों नहीं सीख रहे, इन शॉर्ट उसका रीजन ये है। आप यहाँ पे देखोगे, ये हम 2024 की बात करें जो कि अभी का साल है, सबसे देखो टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, पावर बीआई। दैट्स वाई, दैट इज द रीजन। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे क्या है, मैजिक क्वाड्रेंट फॉर एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जितने भी टूल्स है उन सब टूल्स को कंपेयर करके, यहाँ पे आज कंपेयर करते समय ऐसा नहीं कि बस यूजर, सिर्फ यूजर दिमाग में नहीं होता है, यूजर फ्रेंडली कितना है उसका, अगेन इम्पैक्ट कितना है उसका, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, भले ही फ्री हो लेकिन फ्री देने के साथ में भी उसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेसिस में कितना एप्लीकेंट है, ऐसे सब चीजों को देखा जाता है, फिर देखा जाता है हाँ ये टूल है जो अच्छा है। सो 224 में क्वाड्रेंट में अभी तक के पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से 224 तक अभी तक माइक्रोसॉफ्ट टॉप पे है। उसके नीचे फिर टैब्ल्यू आता है, ऑल्दो टैब्ल्यू इज वेरी ओल्ड, ये तो 2013 में समथिंग कुछ तो भी है, बट फिर भी टैब्ल्यू बहुत पुराना है। फिर भी उसके नेक्स्ट में, मतलब उन्होंने जो जिस तरह से खुद को डेवलप किया है बीआई के सेक्टर में, बीआई के में, इट्स वेरी रिकमेंडेबल, तो ये कर सकते हैं। देखो आप ये सीखो, कोई भी टूल सीख लो, उसके पीछे का जो प्रिंसिपल होता है, जो लॉजिक होता है ना, कि भाई क्या करने से क्या आउटपुट आएगा, बस आपको यूआई चेंज होता है। यूआई मतलब क्या है, आपका यूजर इंटरफेस। यूआई ओ हियर इज नथिंग बट यूजर इंटरफेस, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मींस ओवर हियर, देखो क्लोज करने के लिए हमारे राइट साइड में होता है यहाँ पे ना, ऐसे ऊपर टॉप पे ये क्लोज करते हो तो हम क्या होता है, हमारा जो विंडो है ये पूरा क्लोज होता है, ऐसे विंडो जो होता है वो पूरा क्लोज हो जाता है। यूआई चेंज होगा तो क्या होगा, इसकी जगह ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इसका नाम क्लोज है तो इसको कुछ और दे दे, एग्जिट कर देंगे, इसे कुछ नाम दे देंगे। होगा तो क्या प्रिंसिपल, भाई मेरे विंडो को क्लोज करने के लिए एक बटन देना है, लॉजिक तो वही है ना। तो इस तरह से सिर्फ चेंजेस होता है आपका यूआई, लेकिन पीछे का प्रिंसिपल जो होता है, जो पीछे का लॉजिक है, जो इनपुट आपको
जैसे आप एक ग्राफ बनाओ पावर बीआई में, आप वही ग्राफ बनाओ टैब्लू में, वही ग्राफ बनाए क्लिक में, क्या होगा? कलर चेंज होगा, दिखने में शायद हाईलाइटेड ज्यादा दिखे, कुछ अच्छा दिखेगा, ब्यूटिफिकेशन होगा, लेकिन चार्ट का मीनिंग थोड़ी चेंज होगा। सो कोई भी एक पर्टिकुलर बीआई सीखना है, बाद में आपको जैसे सीखते सीखते जाना है, यू कैन इम्प्लीमेंट इट लाइक दैट। सो ओवर हियर टॉप पे क्यों हमने पावर बीआई, क्योंकि यस अभी के लिए सबसे डिमांडेड पावर बीआई है, तो पावर बीआई ही सीखेंगे, दैट वुड बी वेरी मच इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम पावर बीआई में करने क्या वाले हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डेटा एंड नाउ व्हाई डेटा, ये डेटा कहाँ से पिक्चर में आया? बिकॉज सी पावर बीआई में आप जो डेटा विजुअलाइजेशन करते हो ये डेटा के बेसिस में ही होता है। और नाउ व्हेन वी आर इन 21st सेंचुरी, स्पेशली 21st सेंचुरी की स्पेसिफिकली बोलूंगी, जब 2019 के बाद से कोविड के बाद में आप देखा होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इंटरनेट का यूज और ऑनलाइन जो डिमांड है ना, ऑनलाइन जो चीजें हो चुकी है आजकल, इतनी वास्ट और इतना उसका ज्यादा डिमांड हुआ है कि कभी किसी ने इतना सोचा नहीं होगा 2019 के पहले। चीजें इतने ऑनलाइन हो चुकी चीजें, अभी तो जैसे हमने कहा ना एग्जांपल, अभी तो और इंडिया में तो बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हाइक हुआ है उसका। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यूपीआई सबको पता है, हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पैसे शेयर करते हैं। आप, मैं आपको मजाक नहीं करता, आप कहीं दूसरे कंट्रीज में जाइए, ये फैसिलिटी है ही नहीं अवेलेबल। बहुत रेयर, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम सिटीज में यहाँ फिर जगह पे अवेलेबल है। आप किसी कंट्री में जाओगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे यूपीआई स्कैन करना है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया में कहीं भी जाओ यूपीआई मिल जाएगा, वहां पे ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक सिटीज स्पेसिफिक स्टेट्स में ही मिलते हैं। तो इतना हमारा आगे जा चुका है ऑनलाइन के बेसिस में। तो हम इतना बड़ा तो स्कोप नहीं रख रहे, बट हम क्या कर रहे हैं, बट वी आर एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा जंप कर दिया पीछे मेरा। एटलीस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि कोई भी एक सेक्टर पकड़ लो ना, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर पकड़ लो, बैंकिंग सेक्टर में आप ईमेल ऑनलाइन, है ना, पहले आपको जाके वहाँ पे चेक करना पड़ता था क्या इशू है, आप ईमेल कर दोगे आपके पीओसी को, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन को, आपके मैनेजर को, या फिर आपके रिलेशन मैनेजर को है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। आपको कहीं पैसे निकालने के लिए जाना नहीं, एटीएम में जाओ आ जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग्स है, ये सब चीजें, ये जितने भी अवेलेबिलिटी फैसिलिटी क्या हुई, ये सब ऑनलाइन हो चुकी है। मोबाइल पे बैठ के मैं सब चीजें कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। फ्रॉड भी होता है, वो भी ऑनलाइन ही हो जाता है, बट अगेन देयर आर, जैसे कॉइन की दो साइड, वो भी ऑनलाइन ही होता है। तो अगेन नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे आप, ये अलग अलग डोमेन्स है, ओके, आप देखोगे तो अलग अलग उसके एप्लीकेशन है विद डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। जैसे मुझे अगर वेदर प्रेडिक्शन करना है, तो क्या होता है कि मुझे पिछले के अभी 10 20 30 50 साल के मेरे पास वेदर डेटा होता है, मैं आराम से प्रेडिक्शन कर सकता हूँ ऑनलाइन, वो भी ओके आराम से कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हाँ भाई कहीं तो रिकॉर्ड करना है, कुछ बनाना है, इट वुड टेक अ ह्यूज डिफिकल्टीज टू मेंटेन रिकॉर्ड, पेपर पेन लिख के रखना है। तो अभी तो रिटेल सेक्टर में भी आ गया है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इसी टाइम से 2024 से थोड़ा सा हम पीछे अगर जाएंगे इन द पास्ट 10 साल या 15 साल पहले देखोगे, 10 साल 15 साल भी बहुत ज्यादा हो गया, उसके ही थोड़े पहले, तो देखोगे कि क्या होता था, हम किराना सामान लेने जाते थे तो क्या होता था, वी यूज टू गो इन द शॉप, हम अंकल अंकल हमारे पहचान के थे, वो हमारे फिक्स थे कि भाई ये अंकल हमारे किराने वाले ही है। उनको पता रहता था ये बेटा है, तो हाँ बेटा आ गया, हाँ ये आपके जो जो सामान है रेगुलरली ये आपके मैंने दे दी, पैक कर दिया, आप लेके जाओ। हमें कुछ करना नहीं पड़ता था। मगर उन अंकल को या फिर उन शॉपर वाले को, जो शॉप वाले जो ओनर है, उनको क्या करना पड़ता था, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी कि भाई उधारी कब की बाकी है, कौन सा मैंने प्रोडक्ट दिया है, कौन सा नहीं दिया है, ये लंबा चौड़ा लिस्ट रहता था। लेकिन आज क्या हो गया है, हम एक छोटे से एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटे से एरिया में किराना दुकान है भाई, वो इतना ही मेंटेन कर पाएगा, इससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा भाई, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि क्या है उतना मेंटेन कौन करेगा, उतने लोगों के डिमांड्स को याद रखेगा ना, इतना छोटा सा। हम बात कर रहे हैं पूरे ग्लोब की, हम बात कर रहे हैं पूरे सिटी की, अगर बात करेंगे तो एक बंदा या फिर एक ही दुकान मेंटेन करना डिफिकल्ट है। आजकल के जमाने में पॉपुलेशन है, लॉजिस्टिक है, डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करना है, ऑन द टाइम करना है वो भी स्पेसिफिकली। तो ऐसी चीजों को आपको थोड़ा सा खुद को अपडेट करना होता है। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा, आप जितने ज्यादा ज्यादा लोग कस्टमर बनेंगे उतने उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है। तो पेन डायरी इट्स अ एब्सोल्यूट नहीं कहूंगा, बट इट्स अ ओल्ड मेथड। ओके, तो हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। सो अगेन इवॉल्वेशन हुआ है, आपने इवोल्यूशन देखा, तो ये चीज तो हुई सब जगह पे। इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल है भी। आपको किसी का हिस्ट्री जानना है ना, उसका नाम और डिटेल थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता कर लो, फेसबुक पे डालो, इंटरनेट पे कहीं पे आप एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे आके चेक कर लो, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको चिट्ठा मिल जाएगा भाई, क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कब सोता है, सब इन्फॉर्मेशन।
ये वो करके करके एकदम पॉप आउट करके पूरा उसमें फोटो वीटो डाल के सब रहता है, आप पूरा ट्रैक ऑन कर सकते हो, नेटवर्क एनालिटिक्स पूरा उसको जान सकते हो। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई है? बिकॉज देयर इज अ डेटा। यही डेटा पे तो पूरा इंडस्ट्री डिपेंड है अभी। बिकॉज ऑफ दिस डेटा विच इज अवेलेबल, ये सोशल मीडिया वाला नहीं बोल रहा मैं, बिकॉज ऑफ दिस डेटा व्हाट वी कैन स्टोर ऑन व्हाट वी कैन एनालिसिस, छोटे छोटे चीजें जो हमको कभी पहले पता नहीं थे वो भी हाईलाइट हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को हाईलाइट करने के लिए हम डेटा पे निर्भर होते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम कंपनीज अभी डेटा के ऊपर ही खुद को पास कर रहा है, ताकि डेटा स्टोर कर सके, उस डेटा के हिसाब से जो प्रीवियस पास्ट में गलती हुई वो वापस से ना आए। ओके, टू रेक्टिफाई दैट। सो वेर एवर देर इज अ डेटा, आपको डेटा एनालिटिक्स करो या फिर आप पावर बीआई करो या कोई भी बीआई टूल काम करो, आपको कभी भी भूखा रहना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव ऑलवेज एन ऑप्शंस। ओके, फॉर दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस डेटा। Then what are the benefits? Data driven decision making, ये उसका advantage है Power BI यूज करने का। Then user friendly and intuitive interface, seamless integration with other Microsoft products like Excel, Azure, आराम से connect कर सकते हो। Ability to handle large data set, again to collaborate and sharing capabilities, बहुत सारी चीजें। Then data visualization, machine learning, statistics, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये डिमांड में है। ये जो स्किल्स है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपके जो आप सीखोगे इसमें पावर बीआई में, वो डिमांड में रहेंगे। दीज आर डिमांड स्किल्स इन पावर बीआई विच आर रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट, डेटा क्लींजिंग, पाइथन, एक्सेल, ये सब चीजें होते हैं। अब ये सब चीजों को आप देखो, ये सब चीजों को आप कंपेयर करके देखोगे तो पावर बीआई में सब चीजें अवेलेबल है। आप डेटा ड्रिवन डिसीजन कर सकते हो क्या? यस, चार्ट्स अवेलेबल हम कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली, यस है। सिमलेस इंटीग्रेशन विद अदर प्रोडक्ट्स है। एबिलिटी टू हैंडल लार्ज डेटा सेट है, इतना डेटा सेट के साथ है कि 1 GB तक का भी आप फाइल दे दो, नो प्रॉब्लम, वर्क कर लेगा आराम से। कोलैबोरेशन, शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मशीन एल्गोरिथम यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, फोरकास्टिंग वगैरह, वो कर सकते हैं, तो पार्शियली कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ठीक है, खुद ब खुद कर लेता है, हमें करना नहीं पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, एक्सेल की तरह वर्कआउट करता है, पाइथन इंटीग्रेट कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अटेंशन टू डिटेल्स ले सकते हो, डोमेन नॉलेज अगर अच्छा रहेगा तो यू कैन वर्क ऑन। आर से कनेक्ट करता है, नो सीक्वल या दूसरे सीक्वल से करता है, डेटाबेस से। डेटा माइनिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन, इतने सारे चीजें उसमें हम कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सो ये जितने भी स्किल्स हैं, आप उसको अच्छे से अगर पावर बीआई को होन करोगे, अच्छे से उसे अच्छे से आप आपको उसमें इनकलकेट करोगे, तो आप खुद को देखोगे कि योर विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। ओके, हाँ, अब आप बोलोगे अच्छा सर इसका आपको ये रेफरेंस कहाँ से मिला, ये आपने कैसे लिखा? कुछ नहीं, देखो HTTP Indeed.com पे जाइए, आपको ये जितने करियर के ना ये चीजें जो एक स्किल्स लगते हैं लोगों में, ये सब मैंने पॉइंट आउट किए, तो आपको रेफरेंस भी यहाँ पे दिया है, आप जाके देख सकते हो ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, चलो सर, हम आपने कहा, हमने सीख लिया, हमने वर्कआउट किया, हमने उसको अच्छे से समझ भी लिया, उसके बाद में क्या होगा? व्हाट विल बी अपॉर्चुनिटीज, क्या हमारा हाथ में रहेगा? तो रोल के हिसाब से आप देखोगे तो डेटा एनालिटिक्स रोल, यस, यू कैन वर्क आउट देयर आल्सो। एनालाइजिंग द डेटा एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स यूजिंग पावर बीआई टू प्रोवाइड, आप डेटा एनालिटिक्स के साथ में भी काम कर सकते हो। वेयर डेटा एनालिटिक्स इज देयर यू हैव टू वर्क, यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर बीआई आल्सो। बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलपर, बीआई डेवलपर कहते हैं उसे, वो भी कर सकते हो। डेटा साइंटिस्ट के साथ में भी आप काम कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन दैट आल्सो। अच्छा, साथ में मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ साथ में सर? कंपनी में मतलब साथ में नहीं, कैसे मतलब? जहाँ पे कंसल्टेंट होते हैं ना, वहां पे भी आप लग सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट, की बड़ी कंपनी में जहाँ पे डेटा एनालिटिक, डेटा साइंस के कंसल्टेंट्स होते हैं, आप वहां पे भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको भी लगता ही है, दे रिक्वायर दैट। कंपनी में तो लगेगा ही लगेगा बीआई का। देन डेटा इंजीनियर, उनके साथ भी कर सकते हो। ओके, बिजनेस एनालिटिक्स वहां पे भी होता ही है। देन इंडस्ट्री हायरिंग फॉर पावर एक्सपर्ट्स में देखोगे तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग फर्म्स, मार्केटिंग, बहुत बड़े बड़े इसके ऐसे अलग अलग फील्ड्स है, डोमेन्स है। So there is n number of opportunities, n number of scope toward that particular skill that you are going to learn from Power BI as an Power BI one of a tool. So इतना कह सकते हैं कि यस, आपका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है दिस टाइम ओवर हियर। ओके सर, तो ठीक है, ये भी समझ लिया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो है मेरा पैसा। हमारा पैसा कितना होगा और कितना हमारे प्लेसमेंट होगा और किस तरह से हमें उसका एडवांटेज होगा और कितना एडवांटेज, नॉट किस तरह से बट कितने का एडवांटेज होगा। बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इट, हम यहाँ पे आए हैं, एनालिसिस करके आए हैं। जो आप बोल रहे हो ये हम सब इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, हमें सब पता है। आप ये बताओ कि भाई पेमेंट का क्या है? तो एज एन
सैलरी बेसिस में देखोगे तो हमारा क्या है, BI लास्ट में जो पावर BI कंसल्टेंट है, 4 लाख से 8 लाख का आराम से आप ले सकते हो। 4 लाख से क्यों बोल रहा हूँ, मिनिमम 4 लाख तो लग ही जाता है, और एज अ फ्रेशर मैक्सिमम 8 लाख तो लग ही जाता है। अगेन मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, इफ यू आर हैविंग सम एक्सपीरियंस, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है ये काम, आपने सिर्फ खुद को स्केल अप करने के लिए टूल ऐड किया है, तो ऑब्वियसली आप 10 से 12 लाख भी आराम से ले सकते हो। ओके, ऊपर के क्यों दिए हैं, कंपेयर टू दैट, कंपेयर करोगे बाकी फ्रेशर्स के डिटेल से, तो यस इट्स अ रियल फैक्ट, ये ऐसे ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इतना बड़ा। ऐसा मत सोचना कि डेटा एनालिस्ट बहुत सोने का मतलब लंका ही लेके घूम रहा होगा, नॉट लाइक दैट। ये रियल फैक्ट्स है, रियल वैल्यूज है जो आप देखोगे, दिस आर ऑन ग्राउंड, जो इंडस्ट्री में है, ये आपकी चीजें सामने है। सो यस एज ए फ्रेशर यही वैल्यूज है। हाँ, आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे, आप उसमें और अच्छा प्रैक्टिस करोगे, आपके स्किल्स होन करोगे, तो ऑब्वियसली 8 लाख की जगह 10 लाख 9 लाख कर सकते हो, कैन हैव। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट, ऐसे कौन से कंपनीज है सर जो अवेलेबल है? नाउ अगेन रिमेंबर, मैंने ये पूरे वर्ल्ड का बताया नहीं तो बहुत बार क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे अच्छे खासे नाम बता देते हैं आपको, फिर बोलते हैं कि देखो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंपनीज हैं। अरे पर मुझे जाना कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, मुझे सिर्फ इंडिया का ही बता दो चलो। सो आई हैव टेकन ओनली दोज कंपनीज इन इंडिया विच आर ऑन द टॉप। ओके, जो टॉप पे है, जो यूज कर रहे हैं। बाकी आप देखोगे इसमें और बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारे अगेन क्योंकि BI यूज देखोगे आप ऑब्वियसली ऑन अ रियल फैक्ट बेसिस में देखोगे, तो सो BI इज यूज्ड इन 153 कंट्रीज। हमें 153 कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये कंट्री का बताओ जो इंडिया में हम रह रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तो अभी के लिए 150 थे, मैंने फिल्टर कर दिया है ताकि ये ना हम थोड़ा सा स्पेसिफिक डिस्कशन कर सके। तो इन्फोसिस, यस, KPMG, विप्रो, मेरविक्स, LTI, देन बिरला सॉफ्ट, L&T, ग्रोवेल, जेंसार जेंसार मर्सिडीज, ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। देन अगेन पावर BI अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, टैब्ल्यू है, SAS है, लुकस है, कोई। अब ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, अगेन क्वेश्चन ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था, बट ये क्यों दिखा रहा है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। पावर BI सीख के सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो सर पावर BI सीख लिया हो गया सर, मुझे तो सर पावर BI आई थी, मैं तो भाई एक ही स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके रेलेवेंट में दूसरा भी कुछ सीखना चाहूँ तो क्या सीख लूँ, क्यों, क्या पता कंपनी को लग रहा होगा, तो आप अपॉर्चुनिटी भी आपके पास में, आपके पास नॉलेज है, आप किसी भी टूल को हैंडल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें खुद को एक नया टूल ऐड करना है, तो आपको सीखने में भी कम टाइम लगेगा। सो मेक श्योर अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर होता है तो जरूर सीखना है। सो देयर आर अल्टरनेटिव्स आल्सो, बट अगेन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि पावर BI खुद ही बहुत इतना डिमांड में होता है कि देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको उसका अल्टरनेट पूछेंगे। हाँ, ये हो सकता था कि भाई आप सीख रहे हो क्विक व्यू, और आपको किसी ने पूछा था कि आपने पावर BI क्यों नहीं किया फिर, यस देयर कुड बी चांसेस, बट ये चांसेस कम होंगे कि पावर BI के साथ में दूसरा आता है क्या। ओके, अब बिकॉज ऑफ दिस ऑल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड, टेक्निकल कंसर्न्स पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इफ प्लेसमेंट्स के रिलेटेड में है तो प्लेसमेंट्स के लिए स्पेसिफिक उनका टीम है जो आपसे डिस्कस करेंगे। नाउ देयर आर सम मोर इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू पास। इसका ड्यूरेशन क्या है, जैसे क्वेश्चन होगा आपका, हाउ मच ड्यूरेशन दिस कोर्स इज, इट इज प्रोबेबली 20 days, 20 days प्लस 15 days पकड़ के चल लो, 15 days में आपका प्रोजेक्ट होगा। ओके, 20 days में, 15 days में क्या होगा, एक एक हफ्ता भी पकड़ लोगे तो 3 प्रोजेक्ट आप, हर एक बंदा आराम से करेगा, 3 प्रोजेक्ट्स। डिपेंड है कि उसके पेस पे 3 की जगह 4 करना है तो 4 कर लो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 3 to 4 प्रोजेक्ट्स कैन बी डन बाय ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर। सो 20 days and 15 days, 20 days फॉर योर सेशन एंड 15 days फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। सो ओवरऑल आपका हो गया यहाँ पे 35 days से मैक्सिमम, हाँ 40 पकड़ो, 40 45 मैक्सिमम मैक्स, उससे ज्यादा टाइम जाता नहीं है। तो क्योंकि सैटरडे संडेज भी आएंगे ना बीच में, इसके वजह से अगेन अगर आप वीक डेज पकड़ो तो ही। सो 1.5 month और 1 month दैट वुड बी इनफ, 1.5 month, यस दैट इज एन अप्रॉक्स वैल्यू, उतना ड्यूरेशन रहेगा। अच्छा, ये हो गया मंथ के बेसिस में। सर डेली का टाइम का क्या है, सो फॉर डेली वी विल हैव 7 PM स्टार्टिंग एंड अप टू 8:30 PM, 1.5 घंटे का हमारा रोज का सेशन रहेगा। उस रोज के सेशन में हम पावर BI को अच्छे से निचोड़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और लेट्स से कि 1.5 घंटे में 8:20 पकड़ लो, 10 मिनट लास्ट का होगा जहाँ पे आपको अगर कुछ क्वेरी होगी तो पुट ऑन करना है, वहां पे आपको सॉल्व किया जाएगा। और अगर
इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रैक्टिस करते समय आपको अराइज होते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है। अच्छा, प्रोसेस कैसे करना है, जो क्वेरी है उसका फोटो लेना है, मेरे व्हाट्सएप पे उसको पोस्ट कर देना है, पोस्ट करने के बाद में मैं देखूंगा उसे, और जैसे ही मुझे उसमें से टाइम मिलेगा, जैसे मुझे उसका आंसर आपको देना होगा। गाइस गाइस, माइक माइक प्लीज, माइक। ओके, तो जैसे आपका क्वेरी पॉप होगा मैं चेक करूंगा, जैसे उसके पे रेजोल्यूशन देना होगा, अगर फोन पे ही मैं बता सकता हूँ तो फोन कर दूंगा आपको, अदरवाइज मैं कहीं मीटिंग में कहीं अगर बिजी हूँ यहाँ पे आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा आपको मैं रिप्लाई वहाँ पे व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा। और उसमें भी आपका रेजोल्यूशन नहीं होता है तो वी कैन हैव अ मीट, हम देखेंगे एक दूसरे को, मैं बोलूंगा आप बोलोगे, हम दोनों एक दूसरे को देख के डिस्कस करके हम क्लियर करेंगे, देखेंगे मतलब विजुअल नहीं, बट यस दैट प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करके मीट में हम उसे रिजॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो वैभव, यस आप दो तीन लोग जो उनके हाथ ऊपर थे आप पूछ सकते हो। हेलो या बोलिए। सर, आपका नाम क्या है? ओके, मेरा नाम है फुल गए सर। दीपक भातलवंडे। सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है पावर बीआई की? ओके, वही मैं आपको बोलूँ, टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन मुझे जरूर पूछे, क्योंकि कितना फीस वगैरह है ना वो आपके पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन वो आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि टू बी फ्रैंकली मेरा वो लुकआउट नहीं है इसके वजह से, बाकी कुछ नहीं। सॉरी सर टू इंटरप्ट। रिकॉर्डेड टाइमिंग क्वेश्चन कुछ भेज दीजिए। जैसे कोई एक पूछेंगे, प्लीज प्लीज एक पूछिए। कितना है? हाँ बोलो। मैं आए हाँ बोलो ना, बोलो ना, कोई एक बोलो। सर, टाइमिंग का पूछना था थोड़ा, कि जैसे 7 o'clock तक तो मेरा ऑफिस रहता है, तो क्या ये 7:30 हो सकता है क्या पॉसिबल? देखो 7:30 हो सकता है क्या, फिर कोई बोलेगा सर मैं तो उसी टाइम आता हूँ, कोई 8 हो सकता है क्या, फिर कोई बोलेगा सर 8:30 हो सकता है क्या। मेरा भी तो सर मेरा मीन्स भी 8 बजे तक ऑफिस रहता है। मैं उसी पॉइंट पर रखा हूँ, तो एक बार क्या कीजिए, आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन से जरूर पूछिए, उनसे जरूर कंसर्न कीजिए, बट माय टाइम इज 7 है ना, तो उसके अलावा कैसे हो सकता है, आप एक बार पुट फोर्थ करिए उन पे, तो डिस्कस कर देंगे, हमको बता देंगे। ओके, बट फर्स्ट कांटेक्ट एंड योर सर पॉइंट ऑफ वन कांटेक्ट मोर पर्सन, थिंग, आपके वन पीओसी से मोर जरूर थिंग करिए। सर। हाँ। सर आपने बोला कि पाइथन आर का जो आपने बताया, हम्म तो कि सर हम्म कितना ज्यादा वो जरूर, क्योंकि सर मैं जो बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल पाइथन का बिल्कुल पी भी नहीं जानता, मतलब बिल्कुल बेसिक भी नहीं, हम्म बिकॉज आई वाज नॉट इन दैट फील्ड। सो हम्म कितना वो रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसमें, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। हम्म। देखो सब डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए और विजुअलाइजेशन बनाने के लिए आई वुड से 1 से 2 लाइब्रेरी है, उस पर लिखने का भी कोड, वही चीज वापस वापस रटोगे तो वो भी आपको आ जाएगा। सो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे खुद को तो ओनली पाइथन में से परसेंटेज 2 to 3% ऑफ पाइथन बस। ओके 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 देन, थैंक यू। और वो भी कैसे, देखो मैं दे दूंगा आपको, बस क्या करना है, रटना है, कुछ नहीं करना है। गॉट इट सर। सर या मतलब लॉजिक नहीं लगाना है ना हमें पाइथन के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, वहां पे लॉजिक कुछ नहीं लगाना है। ओके, देखो हम पाइथन से क्यों जुड़ते हैं, पाइथन से जुड़ने का रीजन ये है, कल जाके अगर आपको बोला कि नहीं ना, जो यूजर है आपको कोई बंदा लेट से, या फिर आपका कोई कलीग है जिसको पावर बीआई हैंडल करना नहीं आता है, मगर उसको पाइथन आता है, और आपको पाइथन नहीं आता है, उसको पावर बीआई, आपको पावर बीआई आता है, तो दोनों कैसे करोगे आप एक दूसरे से, तो एक दूसरे के साथ में करते समय ना वो विजुअल्स जो भी चीजें वो पाइथन के थ्रू भी आपको बना के दे सकता है, आप उसको पावर बीआई में भी फिर से बना के दे सकते हो, मतलब आप जो इंटरेक्शन करोगे बेस्ड ऑन लेट्स से विजुअलाइजेशन, किसी में इंटरप्शन नहीं आएगा। ओके। Hello, ओके sir. सर। My name is Anik. Hello, हम्म my name is हम्म Anik from Aurangabad city. हम्म। Professionally, I have B mechanical औरंगाबाद फ्रॉम engineering. बिहार? No, 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 Maharashtra, Maharashtra. अरे तो संभाजीनगर बोलो भाई। Oh, why क्या? not? Why not? हम्म Sambhajinagar. Sure, sure. Actually, sir, my mother is sitting beside of me. He's laughed. Also, he proud to be a Sambhajinagar. Yeah, yeah. Okay, okay. या बोलिए बोलिए। Actually, sir, I'm working in a mechanical industry from 4 years. हम्म Sir, any obstacle occur while joining in IT industry after completion of such course? देखो अगर आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो बेसिकली कि व्हाट हैपेंस इफ आई एम ट्रांजिटिंग माई सेल्फ फ्रॉम लेट्स से मैकेनिकल टू एनी आईटी सेक्टर, देखो एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ, आपने जैसे ट्रांजिट ऐसे नहीं किया है कि भाई मैंने मैकेनिकल का नॉलेज छोड़ दिया है, मैं डिफरेंट डोमेन में, आप क्या कर रहे हो, मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ,
लेकिन मैं मैकेनिकल का बंदा एक आईटी का टूल सीख रहा हूँ जो मुझे हेल्प करेगा बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस डिसीजन लेने में। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे किसी भी तरह का इशू नहीं होता है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आता था, अगर आप बोलते कि मुझे डेटा साइंस में जाना है या फिर मुझे डेटा एनालिटिक्स में बनना है, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? आप आपका बीआई का नॉलेज वहां पे यूज कर सकते हो ना। मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में कर सकते हो। कौन सा पार्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा उसका सीजन प्रॉपर होता है, फिर कौन सा पर्टिकुलर पार्ट सबसे ज्यादा बिकता है, उसका ब्रेकडाउन होने का चांसेस क्यों होता है, क्या उसका रीजन होता है, वो क्यों ब्रेकडाउन होता है, तो फेलियर कहाँ है, फटिगनेस कहाँ पे है, ये सब चीजें आप एनालिसिस कर सकते हो ना। ओके ओके। तो दैट डजंट, तो उसमें आपको किसी को भी, मतलब आपको ही नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये टूल है। ये टूल किसी भी सेक्टर में यूज हो सकता है। सो इट डजंट मीन कि भाई नहीं नहीं सिर्फ मुझे ऐसे ही टूल में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। Okay, okay. So how many days require for completing Power BI course, sir? 20 days विच विल बी इम्प्लीमेंटेड। उसमें से जैसे अभी 3 दिन है डेमो का है, वो छोड़ के जब स्टार्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, तो थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल बेसिस में होगा। सो 20 to 25 days अगेन, क्योंकि अगर बीच में कुछ छुट्टी विट्टी वगैरह आती है तो 25 दिन पकड़ के चलो इम्प्लीमेंटेशन। और फिर बाद में प्रोजेक्ट आपके चालू हो जाएंगे, तो प्रोजेक्ट के फॉर एग्जाम्पल आगे और 15 days पकड़ो, जिसमें 3 3 3 5 5 5 है ना, एक एक हफ्ता का। तो ऐसा आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा और वो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आप देखोगे तो फॉर 35 days का मतलब थियोरेटिकल बेसिस में है, तो प्रैक्टिकल में ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही होगा नीचे तो नहीं होगा, बट ओके। Okay, okay. So, sir, actually, Hello. Hello. या लेट हिम कंप्लीट या आई विल कम बैक टू। या हाँ बोलिए। या आप Hello. संभाजी नगर वाले कंप्लीट कीजिए, ऐसा नहीं कहता, आई थिंक आप कंप्लीट कीजिए। okay, okay, sir. Actually, I have a 4 year experience in mechanical industry. Then, actually, काय आहे सर, 4 वर्षाचा गॅप भरून निघेल का, असं आहे. पण मेकॅनिकल इंडस्ट्री झाले मला काम करतो. तो येस येस, आपले पीओसी ला सांगा, तिथे स्पेशलिस्ट येतात, नो प्रॉब्लेम विथ दॅट, दे विल श्योरली डू. ओके ओके. Hello, sir. एक्सपिरियन्स पण I हाँ. have one question. या My name is Manoj. यस मनोज जी बोलिए। Hello. या बोलिए Sir, I can hear you. is there any connection? Is there any connection between the MySQL and the Power BI and the Power BI? This is my first question, and the second one is, if yes, then how could both these relate? Can you please explain in short? या देखो आप देखोगे कभी भी सीक्वल, जैसे अभी वो कह रहे हैं जो माई सीक्वल एक एग्जांपल है, डेटाबेस है, उसमें हम एक्सट्रैक्ट करते समय क्या होता है, हमें सीक्वल लिखना पड़ता है। तो कभी भी देखना कि सीक्वल इज आल्सो वन ऑफ अ लैंग्वेज। तो कंपैरेटिवली Yes. पाइथन या सी प्लस प्लस कहीं से आप कंपेयर करोगे तो आसान है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। बट फिर भी लिखने के लिए थोड़ा Yeah. सा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें मेंटेन करना ही पड़ता है। पावर बीआई में ऐसा नहीं है। पावर बीआई में क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आसान यहाँ पे क्या हो जाता है, और Okay. सीक्वल में या किसी भी डेटाबेस में एक ड्रॉबैक होता है, वहां पे विजुअलाइजेशन नहीं होता है। तो उसमें से है डेटाबेस ही, लेकिन उस डेटाबेस में डेटा लेंगे ना, तो विजुअली अपीलिंग आप नहीं कर पाओगे माई सीक्वल में, किसी भी डेटाबेस में। तो उसे विजुअली अपीलिंग करने के लिए हम So जब at पावर बीआई से least. करेंगे। या Okay. Okay. बोलिए। So at least we have to get the proper knowledge or the basic knowledge of MySQL, right? नो नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल While रिक्वायर्ड, learning बस the Power BI. नो नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें सिर्फ, जैसे मैंने आपको कहा ना पाइथन का, पाइथन से सिर्फ कनेक्ट करना है, और यहाँ पे भी, और पाइथन से इजी कनेक्ट करना है माई सीक्वल से। आपको तो भी पाइथन में कुछ 2 4 चीजें लाइन लिखनी होंगी पाइथन के, यहाँ पे तो माई सीक्वल में कुछ भी लिखनी नहीं पड़ती है। ये आपको क्या करना है, सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट करना है। कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, यूजर का कनेक्शन का डिटेल चाहिए आपको, क्रेडेंशियल जिसे हम कहते हैं, यूजर कनेक्शंस, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। ये 3 चीजें भी मिलेगी तो भी इनफ है आपके लिए। Okay, I understand, sir. ओके। Hello, sir. हाँ बोलिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? या ऑडिबल, बोलिए Sir, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अभी पावर बीआई में मतलब मैं मतलब पहले अपने एज ए पावर बीआई एंड यूजर में काम करता था। तो एक पावर बीआई में बस एक यूजर इंटरफेस मतलब एक अच्छा यूजर इंटरफेस बना के क्या हम इतना पैकेज पा पाएंगे कि हम मतलब एक आप बोल रहे हो जैसे एक 7-8 लाख का पैकेज मिल, वो उतना वो हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है, नहीं वैसे ही है। देखो पावर बीआई डेवलपर करके या फिर पावर बीआई जो, अगेन फ्रेशर नहीं बोलूंगा मैं, जो एक्सपीरियंस करके लगेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 साल का भी आप लगा के कर लोगे,
तो उतना पैकेज है मार्केट में, आप पता करो, इट इज वेरी नॉर्मल। अच्छा ऐसे क्यों, मैं इसका रीजन बताता हूँ। होता क्या है देखो, पता है क्या, जब आप डेटा में से, बड़े डेटा में से, हम छोटे डेटा की बात नहीं करें, बड़े डेटा में से, कंपनी डेटा में से, जो कि सीक्रेट होता है, जो कि सब लोगों को स्प्रेड नहीं किया जाता है, उसमें से जो आप चीजें कंसील करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, और जो पिन पॉइंट, हम ये नहीं बात कर रहे कौन सा सेल्स है टॉप 5 में, हाँ दिखा दो, अरे वो तो कोई भी करेगा, बट वो क्यों है, वो कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जब ये आप इंसाइट निकालते हो ना, हाँ, तब आपको पैसे देने की बनती है। आर गेटिंग माय पॉइंट? So, hi sir. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं लातूर से हूँ। मला विचारायचं होतं की डेस्कटॉप सपोर्टचा एक्सपिरियन्स कन्सिडर केला जाईल का? डेस्कटॉप सपोर्ट, हम्म. डेस्कटॉप सपोर्ट म्हणजे कसं, नाही कळालं, म्हणजे अंदाजा नाही मला. डेस्कटॉप सपोर्ट राहत नाही का, म्हणजे सर्व्हिस नाव वगैरे टिकेटिंग टूल राहतं त्यावर वर्क करत नाहीत का आपण, हा म्हणजे करू शकतो युजरचे येस येस वगैरे येस, इश्यू सॉल्व्ह करतो ना आपण, हा 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 करू शकतो इन्सिडेंट रिक्वेस्ट येतात ते. येस 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 करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही, यू कॅन डू दॅट. नाही नाही, मी म्हणतोय की इकडला डेस्कटॉप सपोर्टचा एक्सपिरियन्स कन्सिडर केला जाईल का पॉवर बीआय मध्ये स्विच केल्यास, असं विचारतोय मी. हा मग तेच म्हणतोय, करू शकता. करू शकतो ना? हा हा चालेल. हॅलो Sir, हा. सर, तुम्ही प्लेसमेंट प्रोव्हाइड करता का पॉवर बीआय वरती? आर्बर एकेडमी इज स्पेसिफिकली फॉर आईटी ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट सेंटर, आई थिंक पहिला ही हमारा वही था. हो, ते तुम्ही बोलले होते मला, बट 101% बिकॉज मी याच्या आधी 2 कोर्सेस केलेले आणि ते मला 100% प्लेसमेंट गॅरंटी पण बोलले होते, बट नाही दिली. 100% प्लेसमेंट गारंटी कोई नहीं देता है. ओके मैं आपको अभी बता देता हूँ उसका रीजन क्या होता है. देखो प्लेसमेंट की जगह पे आप जाओगे ना इंटरव्यू में, तो आप ही को देना है. वहां पे ऐसा वो चले गया पुराना जमाना कि आपने किसी रेफरेंस के यहाँ से साइन लेके आया, मैंने पास ऑन कर दिया, यहाँ बंदा को ले लिया, वो अभी नहीं होता है. तो 100% गारंटी नहीं है, बट यस आपको 100% ट्रेन किया जाता है. अब आप वहां जाके किस आंसर का क्या आंसर दोगे, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अच्छा, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना. यस इश्यू यस यस वो तो करते हैं ना, वो तो कर ही रहे मैडम, दैट व्हाट वी आर डूइंग. hello. या बोलिए Hello. बोलिए. Hello sir. Hello. सर पहले अरे अरे सुनो 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 सुनो, कोई जो देखो आप सुन रहे हो ना सब लोग, तो सुनते समय आप देख रहे हो ना, कोई एक बोल रहा है तो कंप्लीट तो करो ना उसे. आपके बीच में इंटरप्रेट का तो कैसे लगेगा. सो डोंट डू इट ना, लेट वंस कंप्लीट फॉर वन पर्सन, देन वी विल कंटिन्यू विद दैट. ओके या बोलिए. जी सर. सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे भी हमारा 45 या 40 डेज में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको जो कॉल्स प्रोवाइड की जाएगी वो कब की जाएगी और कितनी की जाएगी और जॉब कब तक लग सकती है? देखो आपको जॉब प्लेसमेंट का कॉल आने के लिए यू हैव टू कंप्लीट मॉक इंटरव्यूज. आपको कैसे भी करके मॉक इंटरव्यू कंप्लीट करना ही होगा. जैसे ऐसा नहीं होता है कि बस सेशन खत्म हो गया, हाँ अभी कॉल आ जाएंगे. मॉक इंटरव्यूज क्यों जरूरी है, मुझे पहले एसेस तो करने दो कि भाई आप उस लेवल तक गए हो कि नहीं. आप उस या लेवल